A very good morning, class 9. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today our topic is formatting a document. That is chapter number 6. Students, in previous tutorial, we have already started a word processing software named as Microsoft Word. Students, you know that Microsoft Word is a word processor that is used to create, edit, format, save and print a document. And we have already discussed how to create a document. हमने सीख लिया है कि कैसे एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है, ओके और क्रिएट करने के बाद कैसे आप उसको उसमें एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हो. मीन्स वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट. Editing means making the changes in the document or changes the contents of the document. So students, today our topic is how to format your document, or that is also called as formatting a document. Formatting means, yes, do you know what is formatting? Yes, beta, formatting means changing the appearance of the document. अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट के कंटेंट को चेंज नहीं करना, जो लिखा हुआ है उसे चेंज नहीं करना. वी जस्ट वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट और अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट दैट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट. ओके, अब हम उसकी अपीयरेंस को चेंज करेंगे. और यू कैन से फॉर्मेटिंग इज यूज टू एनहांस द look of a document. If you want to enhance the look of your document, you want to change the look of your document, आप उसको स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो then you can use formatting. अब formatting के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं. ओके, formatting means, क्या होता है formatting का मतलब? Formatting means changing the font and its size. ओके, आपने font को चेंज कर दिया, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके साइज को चेंज कर दिया. ओके, यू कैन चेंज द टेक्स्ट स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट. ओके, जैसे यहाँ पर आपके पास 2 कलर यूज किए मैंने, ब्लैक कलर और ये मैरून शेड है. ओके, मीन्स you can change with formatting, you can change the color of the document and you can also highlight some text. आप कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो. you can change the case of the text. Case means upper case में, lower case में, sentence case में. there are mainly 5 cases are there. okay, you can adjust the line spacing between the text. means आपके जो टेक्स्ट है, जो एक आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में, हर एक लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, दैट इज नोन एज लाइन स्पेसिंग. okay, you can align the text on the page. means you want to align your text left, right, center or justify. You can also set the distance between the edge of the paper and written text, that is called margin. You can also apply the borders and shadings on the टेक्स्ट. ठीक है, बॉर्डर आप पूरे पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट पर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह आप शेडिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो क्रिएट लिस्ट. ओके, आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, आइदर दैट इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट. मीन्स विद फॉर्मेटिंग वी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क and that all comes under your formatting. अब formatting types, basically there are 3 types of formatting. okay, 3 तरह की formatting होती है, that is character formatting, paragraph formatting and page formatting. Now first of all we will discuss character formatting. Beta, character formatting, as the name suggests, it focus on the appearance of an individual character. कि आपका जो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो कैसा दिखे. जैसे font is a set of characters of specific size and styles. okay, अब आप करेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, उसके लिए हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं. फॉर स्टार्टिंग वी हैव टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके, हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे. लेट यू ऑल नो, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, नेम एज क्लास 9. सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस class 9th document. Now this is the document. You all are aware about this interface that we have already discussed, that this interface of Word is divided into, yes, how many sections? 2 sections, that is application window and
डॉक्यूमेंट विंडो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करने के लिए यू हैव टू गो टू द होम टैब एंड इन होम टैब देयर इज अ फॉन्ट ग्रुप दैट इज रिलेटेड टू कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ओके, अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। ओके, अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है, तो ऑल द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल इन दिस font group. Okay, or you can say press on click on this small arrow present at the bottom corner of the font group. A font dialog box will get open and it contains all the formatting, character formatting features. Is it clear? और आप सब ये यूज भी करते हैं। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं और जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। करेक्टर फॉर्मेटिंग में बच्चे टू डू एनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, सेंटेंस सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है या पेज सेलेक्ट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। हमने बहुत टाइप की सिलेक्शन पढ़ी थी और क्या शॉर्टकट कीज हैं हर एक टाइप की सिलेक्शंस को करने के लिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म फॉर्मेटिंग। ओके, उसके बाद द वेरी फर्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर इज कि आप क्या कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम हियर बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल है, यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज कर लिया एरियल। ओके, नेक्स्ट यू कैन चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, बट ये फॉर्मेटिंग फीचर्स उसी पर अप्लाई होंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, मैंने इसका साइज चेंज कर दिया। अगर वो साइज अवेलेबल नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस बॉक्स। ओके, कुछ पर्टिकुलर साइज चाहिए तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द साइज यू कैन बोल्ड इट, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, नेक्स्ट इज अंडरलाइन। ओके, you can also apply the superscript and subscript option. Now what is this superscript and subscript option? बच्चे, superscript means if you want to make some text appear the below line. Okay, अगर आप किसी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट से बिलो डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसको क्या बनाएंगे, सबस्क्रिप्ट। और अगर आप किसी टेक्स्ट को बिलो द बेस लाइन अपीयर करवाना चाहते हैं तो दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। अब जनरली हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट हियर, एक सिंपल सी चीज लिखती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर। ओके, टू राइट एक्स स्क्वायर आप x2 लिखेंगे, ये तो साथ साथ आ जाएगा। यू वांट कि जो 2 है वो बेस लाइन से ऊपर जाना चाहिए, तो सेलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड मेक इट एज superscript. Okay, superscript. Or you can also press the shortcut key control plus shift plus sign. Okay, which one, control plus shift plus sign. Okay, click here, it आपका क्या बन जाएगा, टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। और अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, और इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू साइन। Is it clear? In this way you can make कि जो आपका टेक्स्ट है वो बिलो द बेस लाइन अपीयर हो या अबव बेस लाइन अपीयर हो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब सपोज करो कि आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज फ्रॉम ग्रो फॉन्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज योर श्रिंक फॉन्ट। इज इट क्लियर? कॉन्टिन्यूसली आप इसको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपका, अगर आप ग्रो पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज ग्रो होता जाएगा, और अगर आप श्रिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर? एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट कलर फ्रॉम हियर। ओके, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द कलर, और इफ यू वांट कोई भी स्टैंडर्ड कलर चूज कर सकते हो यहाँ से। इफ यू वांट टू चूज एनी अदर कलर, click on more color and there is a custom option, you can apply RGB combination. okay, जैसे जैसे आप इस स्केल को ऊपर या नीचे लेके जाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एक पर्टिकुलर कलर क्या होता जाएगा, चेंज हो जाता जाएगा। ओके, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट यू कैन मॉडिफाई इट्स कंसिस्टेंसी, मतलब आप उसमें जितना भी ये RGB का कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करके कलर को चेंज कर सकते हैं। So in this way you can change the color of the
text. You have changed the text color, size. Okay, आपने decrease कर लिया font को, increase कर लिया. After that you can also change the background color. ठीक है, for this select the text जिसका background color आप change करना चाहते हैं. For example, I want to change the background color of this text. Firstly select the text and then click on, आप उसको highlight कर सकते हो बेटा text को. ठीक है, आपको उसको क्या करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है. तो यू कैन हाईलाइट द टेक्स्ट इन दिस वे. इज इट क्लियर? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होती है, आपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया. नाउ दिस इज आफ्टर दैट अनदर फीचर्स. और नेक्स्ट थिंग, अब हम ना इसको लाइट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए. हमने हाईलाइट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल select it, okay, and then highlight it. Okay, now the next thing is you can change the case. अब बेटा केस चेंज क्या होता है, देयर आर 5 केसेस. सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस. नाउ सेंटेंस केस मीन्स सेंटेंस केस जहाँ की जैसे आप सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं. आपको ऑलरेडी ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है. अगर आप इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ जी, कन्वर्ट इट टू लोअर केस. जितना भी टेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट इट. ओके, आफ्टर दैट गो टू केस एंड कन्वर्ट टू लोअर केस. हाँ जी, सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, लोअर लेटर्स में. एंड देन अगर आप इसे अपर केस में करेंगे, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू द अपर केस. नेक्स्ट इज मैं इसको क्या कर रही हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड. मीन्स जितने भी वर्ड्स हैं आपके उस सेंटेंस में, आपका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल. ओके, एंड नेक्स्ट इज टॉगल केस. अगर आप इसे टॉगल करेंगे, टॉगल मीन्स उल्टा होता है, जो आपका कैपिटल लेटर्स में वो स्मॉल में हो जाएगा और जो स्मॉल में है वो किस में हो जाएगा, कैपिटल में. Yes, click on toggle case. So students, it's clear the sentence cases. How many change cases are available? Yes, 5. The very first one is sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, and toggle case. Now I am going to convert it to the sentence case. Now other formatting features. बेटा जो बाकी formatting features हैं, click on this small arrow, a font dialog box will get open. We have already discussed how to change the style, how to make it bold, italic, regular. Size भी change कर लिया, font का color भी change कर लिया. You can also change the underline style. जो अभी आपने underlining करी थी ना, आप उसके style को change कर सकते हैं. Suppose I from this, yes, from this drop down from this ruler or this scroll bar, you can change the style of the underline. Yes, is it okay? Next, underline color. You can also choose underline color. Next effects are, देखो जो भी आप करोगे बेटा, this is known as preview window. जो चीज भी आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स आप अप्लाई कर रहे हो, वो सब आपको प्रीव्यू विंडो में दिखाई देंगे. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्ट्राइक कर सकते हैं. देखो फॉर्मेटिंग आपको प्रीव्यू विंडो में दिखाई देगा. अगर मैंने स्ट्राइक थ्रू किया तो आपके टेक्स्ट पे क्या आ जाएगी, स्ट्राइक्स आ जाएंगे. डबल स्ट्राइक्स थ्रू करोगे तो डबल लाइनिंग आ जाएगी. ओके, एंड नेक्स्ट इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, यहाँ से भी कर सकते हो. If you want to give the shadow to your text, you can give from this shadow effect. आउटलाइन करना चाहते हो, आउटलाइनिंग ही आएगी. जो टेक्स्ट आपका फिल होता है, जो करेक्टर मीन्स आपके फिल्ड होते हैं, फिल्ड नहीं आएंगे, सिर्फ शेडो आएगी, सॉरी आउटलाइनिंग आएगी उसकी. ओके, मैंने बाकी सारे ऑप्शंस को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया. ओके, सो इन दिस वे यू कैन मेक changes in the text. Make changes, no, that is called editing. You can change the appearance of the text. Is it clear? एक और चीज आती है बेटा, that is font dialog box में सेकंड टैब होती है आपकी करेक्टर स्पेसिंग की. आप करेक्टर में किस तरह की स्पेसिंग देना चाहते हो. 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिंग इज देयर, नॉर्मल, एक्सपेंडेड एंड कंडेंस्ड. अगर आप नॉर्मल स्पेसिंग दोगे तो ये नॉर्मल जो भी आपके पास स्पेसिंग आ रही है दैट इज नॉर्मल स्पेसिंग. ओके, अगर आप एक्सटेंडेड कर दोगे
एक्सपैंड कर दोगे तो करेक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आप इसको करके देखिए। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। एक्सपेंडेड, पहले इसको हम जो हमने फॉन्ट में चेंजेस किए थे हमने इसको आउटलाइन किया था। आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ओके, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, एक ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर ली एंड देन करेक्टर स्पेसिंग इज एक्सपेंडेड। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। हाँ जी, एक्सपैंड हो गए आपके करेक्टर्स। और नाउ सेलेक्ट अगेन, सेलेक्टेड, go to font dialog box, character spacing, here it is condensed. Have you seen the changes? Yes, in this way you can also set the space between the characters. Another thing is, suppose I want to copy the formatting of a text to another text. मुझे किसी टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, आई वॉन्ट टू कॉपी इट्स फॉर्मेटिंग। तो एक और चीज होती है बेटा, दैट इज नोन एज फॉर्मेट पेंटर, दैट इज अवेलेबल इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। देखो आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज करते हो, उसमें आपका टेक्स्ट कॉपी होता है, बट आई डोंट वांट टू कॉपी द टेक्स्ट, आई जस्ट वांट टू कॉपी द formatting of the text. So for this, to copy the formatting of a text, जिसकी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर बटन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। अ ब्रश साइन विल अपीयर। ओके, देखो ब्रश साइन आ रहा है आपके पास, जैसे पेंट करने के लिए ब्रश का साइन आता है ना, इसी तरह से ब्रश का साइन आ रहा है आपका पेंट के लिए। ओके, आप जिस करेक्टर या जिस वर्ड पे आप उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो, जस्ट क्लिक देयर। ओके, सपोज ये जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर, ये फॉर्मेटिंग की कॉपी किया मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को एंड क्लिक ऑन दिस चेंज। देखो वही फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई हो गए चेंज के ऊपर, टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द वेरियस करेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्टर फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट आपके पास आती है पेज फॉर्मेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर पेज फॉर्मेटिंग। सो टू गो फॉर द पेज फॉर्मेटिंग, गो टू द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, इसके बाद पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पेज फॉर्मेटिंग का। बेटे पेज फॉर्मेटिंग में आप मार्जिन, ओरिएंटेशन ये सब सेट कर सकते हो। आई विल टेल यू, ओरिएंटेशन होता है पेज का कि आप पेज को वर्टिकल दिखाना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल, दैट इज टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन इज देयर, वन इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड इज लैंडस्केप। अगर लैंडस्केप दिखाओगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपका पेज, और अगर आपका पेज वर्टिकली प्रिंट लेना चाहते हो तो उसके लिए पोर्ट्रेट। ओके, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द वाटरमार्क। अगर आप बैकग्राउंड पर पेज के कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ओके, दैट इज नोन एज, वो आपके इस टेक्स्ट के पीछे अपीयर होगा। यू कैन अप्लाई अ पिक्चर एज अ वाटरमार्क और यू कैन अप्लाई अ टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम वाटरमार्क पर जाना पड़ेगा। ओके, एंड अगर कोई वाटरमार्क नहीं है तो नो वाटरमार्क, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई अ पिक्चर वाटरमार्क, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन पिक्चर वाटरमार्क। अगर आप टेक्स्ट को एज अ वाटरमार्क बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट लगा दीजिए। ओके, मैं टेक्स्ट को एज अ वाटरमार्क बनाना चाहती हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश, व्हाट यू वांट टू राइट, राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, आई वांट टू राइट पाथ स्कूल। ओके, एंड देन अप्लाई। देखो क्लोज करो, आपको वाटरमार्क दिखाई देगा। इज इट क्लियर? yes, so in this way you can apply the watermark. You can also change the page color from here. okay, आप पेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द फिल इफेक्ट्स, लाइक मुझे दैट इज ग्रेडियंट, आपको 1 और 2 कलर का मिक्सचर, कलर का मिक्सचर दिखाना है। सपोज 2 कलर मिक्सचर दिखाना है तो you can choose the 2 colors from here. I want to choose this color and second color I want to choose this. Okay, so apply it in this way. You can change the page, yes, page color. You can also apply the picture as a page color. Okay, sorry, picture as a background. How to
to apply picture as a background on the page. For this, click on the page layout tab, and then from page background, click on page color, and then click on fill effect option, and from here you can also apply the from fill effect dialog box, click on picture tab and you can select the picture. ठीक है, आप पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर आपको चाहिए. Select the picture from here. Suppose I want to select a picture. I want to apply this desert as a background. Now click on OK. Is it clear? In this way you can change the background of the page. Yes, Control Z किया मैंने for undo the last change. Yes, next we have already discussed how to change the page color, how to use fill effect. Fill effect में हमने gradient apply कर दिया. Gradient means mixture of two or more colors. Okay. अब बेटा ये जो gradients है ना, आप different way से दिखा सकते हो कि gradient में vertical gradient आना चाहिए, horizontal आना चाहिए. तो आपको preview window में ये option दिखा देगा कि आपका जो gradient है वो किस तरह से appear होगा. Is it clear? Next you can also apply the texture. आप किसी भी texture को as a background of page लगा सकते हैं. Is it clear? Now next is your page border. I am going to undo this change. Control Z. You can also apply the page border. Okay. Now how to apply the page border? For this, there are various settings. You want to apply box, shadow, 3D और custom. And next is style कि जो आपका border है वो किस style में आना चाहिए. Suppose I want to appear the border like this. ठीक है, मुझे इस तरह का पेज का एक बॉर्डर चाहिए. यू कैन ऑल्सो सेट द कलर. यस, कलर. एंड नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द विड्थ. ठीक है, आप विड्थ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई एन आर्ट. आपको प्रीव्यू विंडो में दिखाई दे रहा है बेटा कि आपका बॉर्डर कैसा दिखेगा. आप किसी तरह के भी आर्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इज इट ओके? नाउ अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट. Okay, and then click on OK. In this way you can apply page border. Clear बेटा? So ये चीजें आपकी आती हैं पेज फॉर्मेटिंग में. Yes, you can and from ये तो आपका हो गया पेज बैकग्राउंड. नेक्स्ट इज पेज सेटअप. पेज सेटअप में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिन? मार्जिन मीन्स हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो एक नॉर्मल मार्जिन यूज करते हैं. Now what do you mean by margin? Margin means the distance between the edge of the paper and written text. Okay? आपने edge of the paper और written text में कितना space छोड़ना है, that is known as margin. So हम जो normal margin को ही set करते हैं, means there are 4 types of margin: top, left, right and bottom. 1 inch distance छोड़ते हैं हम चारों साइड से. And if you want to change it, you can go to custom margin and you can set the margin from here. ठीक है, आप इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं. जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे कम करेंगे, आपको नीचे ये प्रीव्यू विंडो में दिखाता जाएगा. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सेट द ओरिएंटेशन हेयर कि आप टेक्स्ट को वर्टिकल दिखाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल. एक बेटा आपके पास होता है गटर मार्जिन. नाउ व्हाट इज गटर मार्जिन? बेटा आप क्या करते हो, देखो आपकी बुक में एज ऑफ द पेपर और रिटन टेक्स्ट में कुछ डिस्टेंस होता है. सपोज आप बुक को बाइंड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना पड़ता है. सो दैट इज जो आप मार्जिन के अलावा लेफ्ट में स्पेस छोड़ते हैं, दैट इज नोन एज गटर मार्जिन. अब वो पोजीशन आप देखो, बाइंडिंग हम 2 साइड से करवा सकते हैं, या तो लेफ्ट से या टॉप से. तो यू कैन ऑल्सो सेट द पोजीशन ऑफ द गटर. ओके, कि कहाँ से आपने वो मार्जिन छोड़ना है बाइंडिंग के लिए. यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम हियर. नाउ बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग.